یہ داستان ہے اللہ کے جلیل القدر نبی سلیمان علیہ السلام کی، وہ نبی جنہیں دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عطا ہوئی، مگر جن کی زندگی کا آغاز عاجزی، علم اور حکمت سے ہوا۔ یہ کہانی تخت سے پہلے کی ہے، یہ کہانی طاقت سے پہلے کی ہے، یہ کہانی اس نور کی ہے جو بچپن ہی میں ظاہر ہو چکا تھا۔ بیت المقدس کی فضاؤں میں، شام کی سرزمین، ہلکی ہوا، پہاڑوں کے سائے، یہ وہ خطہ تھا جہاں عظیم نبی داؤد علیہ السلام حکومت کرتے تھے۔ وہ صرف بادشاہ نہ تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول بھی تھے۔ ان کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ اسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا سلیمان۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ بچپن کی غیر معمولی نشانیاں، بچپن ہی سے وقار اور غیر معمولی سمجھ بوجھ تھی۔ وہ کھیل کود میں بھی عدل اور انصاف کی بات کرتے، دربار میں اکثر اپنے والد کے ساتھ بیٹھتے، خاموشی سے فیصلے سنتے، لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھتے، ان کی آنکھوں میں سوال فرمایا کرتے اور دل میں لڑکا اللہ کی خاص عطا ہے۔ مشہور فیصلہ، حکمت کی پہلی جھلک۔ ایک دن دو عورتیں دربار میں حاضر ہوئیں، دونوں ایک ہی بچے پر دعویٰ کر رہی تھیں۔ فیصلہ مشکل تھا، کوئی گواہ نہ تھا۔ لے کر عرض کیا، ابا جان، مجھے ایک تدبیر سوجھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر ایک کو آدھا دے دیا جائے۔ ایک عورت خاموش رہی، دوسری چیخ اٹھی، نہیں، بچہ اسے دے دیں، بس اسے زندہ رہنے دیں۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ اس دن سب نے دیکھ لیا، یہ نوجوان عام نہیں، یہ حکمت اللہ کی طرف سے ہے۔ علم اور عبادت میں نہیں، عبادت میں بھی آگے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے، اللہ سے سرگوشی کرتے، ان کی دعا میں عاجزی تھی، ان کے سجدے میں آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے اصل طاقت اللہ کی رضا میں ہے۔ دربار کا ماحول، حضرت دربار عدل کا مرکز تھا۔ کوئی غریب بغیر سنے واپس نہ جاتا، کوئی مظلوم بغیر انصاف کے نہ رہتا۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہت کا اصل مقصد خدمت ہے، غرور نہیں۔ انہوں نے سیکھا کہ طاقت ذمہ داری ہے، برتری نہیں۔ نبوت کی بشارت۔ وقت گزرتا گیا، ان کی زبان میں وقار، چہرے پر نور، اور فیصلوں میں حکمت بڑھتی گئی۔ لوگ کہتے، یہ نوجوان مستقبل کا رہنما ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ صرف ایک اعلان نہ تھا، یہ آسمانی ذمہ داری تھی۔ وراثت سلطنت۔ جب حضرت دال الف واو حمزہ دال کا وصال ہوا تو سلطنت اور نبوت دونوں سین لام یہ میم الف نون کو عطا ہوئیں۔ وہ تخت پر بیٹھے، مگر دل میں عاجزی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، اور مجھے تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا غرور کی نہ تھی، یہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ عظمت کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ دور جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ مگر یاد رکھیں، ہر عظمت سے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، اور بنیاد تھی حکمت، عدل، عبادت اور عاجزی۔ اختتامی منظر، حصہ اول کا کلام عکس۔ رات کا وقت ہے، بیت المقدس کی فضا خاموش ہے، نوجوان بادشاہ تنہا کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوا ان کے تابع ہوگی، جنات ان کے حکم پر چلیں گے، اور ایک انگوٹھی ان کی سلطنت کی علامت بنے گی۔ مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ کی عظمت کا عروج۔ حصہ دوم، عظیم سلطنت ہوا اور جنات کی فرمانبرداری۔ یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی
सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इन्हें ऐसी सल्तनत अता की जो ना पहले किसी को मिली ना बाद में किसी को मिलेगी। ये सिर्फ एक बादशाहत ना थी, ये कुदरत इलाही का जिंदा मोजिज़ा थी। दुआ की कबूलियत। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे तो उनके दिल में फ़ख्र नहीं, खौफ़े खुदा था। इन्होंने आजज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। बेशक तो ही अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और फिर वो मनाजिर शुरू हुए जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। हुआ की फरमाबरदारी, हुआ जो किसी के काबू में नहीं आती, जो पहाड़ गिरा देती है, जो समंदर को मौजज़न कर देती है, वही हुआ सीन लाम ये मीम अलिफ नून के हुक्म की ताबे हो गई। सुबह का सफ़र 1 महीने के बराबर, शाम का सफ़र 1 महीने के बराबर। वो अपने वसी तख्त पर बैठते, उनके साथ लश्कर होता और नरम हुआ इन्हें लेकर आसमानों के नीचे सफ़र करती। दूर दराज शहर, सहरा, पहाड़, समंदर सब उनके सामने झकते नजर आते, मगर उनके दिल में तकब्बुर ना आता। वो हर सफ़र के बाद सजदा शकर अदा करते। जन्नात की फ़ौज, अल्लाह ताला ने जन्नात को भी उनके ताबे कर दिया। वो जन्नात जो आम इंसान की आँख से ओझल होते हैं, जो तेज़ रफ्तार हैं, जो समंदरों की तह तक जा सकते हैं, सब उनके हुक्म पर काम करते। कोई महल बनाता, कोई किला तामीर करता, कोई मोती निकालता, कोई खजाने जुमा करता। अगर कोई नाफरमानी करता तो उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाता। मगर सीन लाम ये मीम अलिफ नून का निज़ाम सख्ती नहीं, अदल पर कायम था। शानदार तामीरात, उनके हुक्म से अजीम उश्शान महल्लात तामीर हुए। ऐसे सुतून जो आसमान को छूते मालूम होते, ऐसे फर्श जो शीशे की मानिंद साफ थे। एक महल का फर्श शफ़ाफ शीशे का था, नीचे पानी बहता दिखाई देता। लोग हैरान रह जाते, मगर ये सब सीन लाम ये मीम अलिफ नून की ताकत नहीं, अल्लाह की अता थी। परिंदों की फ़ौज, परिंदे भी उनके लश्कर का हिस्सा थे। हर परिंदे की एक जिम्मेदारी थी, कोई खबर लाता, कोई रास्ता दिखाता, कोई पैगाम पहुंचाता। एक दिन इन्होंने लश्कर का जायजा लिया, फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा। ये मामूली परिंदा ना था, ये इत्तिलात का माहिर था। मलका सबा का वाक़या। हुदहुद वापस आया और ख़बर दी, मैं एक ऐसी कौम से होकर आया हूँ जो सूरज की इबादत करती है और उनकी मलका बहुत ताकतवर है। वो मलका थी बिल्कीस, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान होकर आ जाओ। खत मलका तक पहुंचा, वो हैरान हुई। इसने मशवरा किया, तोहफे भेजे, मगर सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने वाज़ेह कर दिया, हमें तुम्हारे तोहफों की ज़रूरत नहीं। आखिरकार मलका खुद हाजिर हुई। तख्त का मोजिज़ा। जब मलका सबा आने लगी तो सीन लाम ये मीम अलिफ नून ने दरबार में फरमाया, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास लाए, उससे पहले कि वो मुसलमान होकर पहुँचे। एक ताकतवर जिन बोला, मैं उसे आपके उठने से पहले ले आऊँगा। मगर एक ऐसा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। और वाकई मलका का तख्त आने वाहिद में हाजिर हो गया। ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शक्र करता हूँ या नाशुक्री। यही फर्क था, वो मोजिज़ा देखकर भी आजिज रहे। अंगूठी की अलामत। रिवायात में जिक्र है कि उनके पास एक अंगूठी थी जो उनकी सल्तनत की निशानी समझी जाती थी। ये अंगूठी कोई जादू ना थी, बल्कि अल्लाह की अता का एक ज़ाहिरी निशान थी। उसी के ज़रिए जन्नात पर नज़म कायम रहता। मगर याद रखें, अल्लाह जब किसी को अज़मत देता है तो उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। तन्हाई की दुआ। रात का वक्त था, महल खामोश था, हवा रुक चुकी थी, लश्कर सो चुका था। हजरत खड़े थे,
इन्होंने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, अगर तो चाहे तो सब कुछ छन सकता है, मुझे शकरगुजार बना दे। इन्हें मालूम ना था कि बहुत जल्द एक आजमाइश आने वाली है जो पूरी सल्तनत को हिला देगी। हिस्सा दोवम का इख्तिताम। ये वो दूर था जब ताकत अपने उरूज पर थी, हुआ ताबे थी, जनात फरमानबरदार थे, परिंदे सफ बांधे खड़े थे, मलका सबा ईमान ला चुकी थी। मगर कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अजमत के बाद इम्तिहान आता है और अगला आजमाइश। अंगूठी का राज और शैतानी फरेब। ये वो बाब है जहां अजमत के आसमान पर चमकता हवा सूरज अचानक आजमाइश के बादलों में छप जाता है। ये वो लम्हा है जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत एक अंगूठी के गायब होने से लरज उठती है। और ये वाक़या है अल्लाह के बरगज़ीदा नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, जिसने साबित किया कि असल ताकत तख्त में नहीं बल्कि ईमान में होती है। अंगूठी अलामत इक़्तिदार। रिवायात में आता है कि हज़रत सी की एक अंगूठी थी जो उनकी सल्तनत की ज़ाहिरी निशानी समझी जाती थी। उसी के ज़रिए जनात पर नज़म कायम रहता था, उसी के सबब दरबार में उनका हुक्म नाफिज होता। लेकिन याद रखें, ये अंगूठी खुद ताकत ना थी, ताकत तो अल्लाह की अता थी। अंगूठी सिर्फ एक अलामत थी, मगर अल्लाह ताला अपने नबियों को भी आजमाते हैं। एक मामूल का दिन जो मामूली ना रहा। एक दिन हज़रत सी अपने महल में थे, मामूल के मुताबिक अमूर सल्तनत निपटा रहे थे। फिर गुस्ल के लिए जाने का इरादा किया। रिवायत के मुताबिक उन्होंने अपनी अंगूठी एक काबिल एतमाद शख्स के पास अमानत में रख दी। वो लम्हा सादा था, मगर तकदीर एक नया बाब लिख रही थी। शैतान का फरेब। एक शैतान ने इंसानी शक्ल इख्तियार की, उसी शख्स की सूरत में आया। चेहरा वही, आवाज़ वही, अंदाज वही। इसने अंगूठी ले ली और तख्त पर जा बैठा। जब हज़रत सी और अंगूठी तलब की तो हैरान रह गए। मैं तो दे चुका हूँ, वो शख्स कहने लगा। सल्तनत के दरवाजे बंद हो चुके थे। तख्त पर जाली बादशाह। शैतान अंगूठी पहनकर दरबार में बैठ गया। चेहरा सी था, आवाज़ भी वही थी। लोगों को शक ना हुआ, मगर एक फ़र्क था, नूर नबुवत मौजूद ना था। फैसलों में सख्ती आ गई, लहजे में गुरूर आ गया, रहमत कमज़ोर पड़ने लगी। लोग दिल ही दिल में कहते, हमारा बादशाह ऐसा ना था, मगर हकीकत अभी पर्दे में थी। असल नबी की तन्हाई। इधर अल्लाह के नबी दरवाजे पर खड़े थे। मैं सुलेमान हूँ, मगर किसी ने यकीन ना किया। सोचिए, जिसके हुक्म से हुआ चलती थी, जिसके सामने जनात झकते थे, आज वो आम इंसान की तरह खड़ा था और कोई पहचानने को तैयार ना था। ये अल्लाह की आजमाइश थी। दरबदर जिंदगी। सल्तनत छन गई, तख्त ख़त्म हो गया, इख्तियार मिट गया। हज़रत सी छोड़कर निकल गए। किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने इज्जत ना दी। इन्होंने मजदूरी की, मछलियाँ पकड़ें, मेहनत से पेट पाला, लेकिन ज़बान पर शिकवा ना आया। इन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये तेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र अता फरमा। तो ही मालिक है, तो ही वापस देने वाला है। सल्तनत में बेचैनी। इधर जाली बादशाह के फैसले सख्त होने लगे, अदल कमज़ोर पड़ गया। लोगों के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। वो कहते, पहले वाला सुलेमान नरम दिल था। कुछ अहल इल्म ने महसूस किया कि ये वो शख्सियत नहीं, मगर दलील ना थी। अंगूठी का समंदर में जाना। शैतान को खौफ हवा के राज खल जाएगा। इसने अंगूठी उतारी और समंदर में फेंक दी। एक मछली ने उसे निगल लिया। इधर हजरत सीन के यहाँ काम कर रहे थे। बतौर उजरत एक मछली मिली। जब इन्होंने उसे काटा, अंदर वही अंगूठी थी। वो लम्हा नाकाबिल बयान था। आंखों से आंसू बहने लगे। ये अल्लाह का वादा था, इज्जत की वापसी। इन्होंने अंगूठी पहनी। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बदल गया।
हुआ दोबारा ताबे हो गई। जन्नत ने सर झुका दिया, दरबार खल गया, शैतान पकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, अदल फिर कायम हुआ। सबसे बड़ा सबक ये वाक़या हमें सिखाता है, ताकत अल्लाह की अमानत है। आजमाइश नबियों पर भी आती है, सब्र करने वाला कभी रसूल नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। हजरत को दिया मगर ईमान ना खोया, और आखिरकार ईमान ने तख्त वापस दिला दिया। इख्तितामी मंजर, रात का वक्त है, महल रोशन है, हजरत में हैं, आँखों में आंसू हैं। वो कहते हैं, ए मेरे रब, ये सब तेरा फजल है। अगर तो चाहे तो सब कुछ ले ले, अगर तो चाहे तो सब कुछ दे दे। मैं तेरा बंदा हूँ, और यही वो सबक है जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। मजदूरी के दिन और सब्र का कमाल। ये वो बाब है जहाँ अजमत का ताज जमीन पर गिर जाता है, और नबी अजीम सुलेमान इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाते हैं। ये वो दिन है जब तक दौलत हुआ और जन्नत सब छन जाते हैं, मगर ईमान बाकी रहता है। दिन की शुरुआत गुर्बत में, सुबह की रोशनी धुंधली थी, महल के अजीम सुतून और झीलें गायब थीं। अब दरबार नहीं बल्कि शहर की सड़कें थीं। हजरत सीन के सामने कभी हुआ और जन्नत जकड़ते थे, अब हाथ में जाल लिए खड़े थे। मछलियां पकड़ते, बाजार में मजदूरी करते, किसी ने पहचाना ना था। लोग सोचते ये कौन है, और वो खामोश रहते। मेहनत में इज्जत, वो सिर्फ खुराक के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे, हर काम में आजजी और ईमान था। मजदूरी करते वक्त भी दिल में अल्लाह की याद थी, हर मछली पकड़ने में, हर जाल डालने में, हर कदम पर शक्र और दुआ जारी थी। यही सब्र उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। रात की तन्हाई, दिल की इबादत। रात आती तो सब सो जाते, महल के दरवाजे नहीं दरख्तों के नीचे छाए थे। वो तन्हा बैठते, आसमान की तरफ देखते, और आहिस्ता से कहते, ए मेरे रब, ये सब तेरे हाथ में है। अगर तो चाहे तो सब कुछ ले ले, अगर तो चाहे तो सब कुछ वापस दे दे। मैं तेरा बंदा हूँ, और बस तुझ पर भरोसा रखता हूँ। रात के अंधेरे में उनकी आंखों से आंसू बहते, मगर जबान पर शिकवा ना आया। ये सब्र और आजजी उनकी नबुवत की असल पहचान बन गई। सब्र की आजमाइश। दिन गुजरते गए, लोगों के दरमियान वो आम मजदूर बन चुके थे। कोई इज्जत ना दी, कोई पहचान ना की, मगर उनके दिल में एक सुकून था, एक रोशनी थी। वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें आजमाइश में डाला है। ये सिर्फ एक लम्हा है, वक्त आएगा सब वापस लूटा दिया जाएगा। ये सोच ही उनका हौसला थी। मछली और आजमाइश की गवाही। एक दिन एक आम मछली पकड़ी गई। ये वो मछली थी जिसने बाद में अंगूठी निगल रखी थी। हजरत सली को काटा और अंदर से वो अंगूठी निकाली। ये लम्हा अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा सबूत था। सब्र करने वाला कभी ज़ाया नहीं होता। नसीहत, सब्र का कमाल। ये वाक़या हमें ये सिखाता है, ताकत आर्जी है, ईमान मुस्तकिल। गुर्बत और आजमाइश में सब्र इंसान को बुलंद करती है। अल्लाह पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। नबी की सबसे बड़ी पहचान उनकी आजजी और शक्र है। हजरत से और मेहनत में भी अपनी नबुवत और ईमान को कायम रखा। इख्तितामी मंजर, रात का वक्त था, मछलियाँ पकड़ी जा रही थीं, हवा खामोश थी, परिंदे आसमान में साकत थे। हजरत के नीचे बैठे थे, आँखों में आंसू, दिल में सुकून, ज़बान पर शक्र। वो आहिस्ता से दुआ करते, ए मेरे रब, ये सब तेरा फजल है। मैं तेरा बंदा हूँ और तुझ पर मुकम्मल भरोसा रखता हूँ। और यही वो लम्हा था जहाँ इंसानियत ने सबसे बड़ा सबक सीखा। अजमत के बगैर ईमान भी कामयाबी है। ठीक की वापसी, शैतान की रसवाई और आखिरी नसीहत। ये वो बाब है जहाँ अल्लाह की कुदरत और सब्र की बरकत नजर आती है।
یہ وہ لمحہ ہے جب آزمائش ختم ہوتی ہے اور ایمان کی روشنی دوبارہ سب پر چھا جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش صرف ایک عارضی مرحلہ ہے، مگر اللہ کی حکمت اور صبر کا پھل ہمیشہ دائمی ہے۔ انگوٹھی کا سمندر میں جانا۔ شیطان، جس نے دربار میں تخت پر قبضہ کر لیا تھا، اپنی چالاکی کے سبب کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اللہ کی حکمت سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ شیطان خوفزدہ ہوا کے راز کھل جائے گا۔ اس نے انگوٹھی اتاری اور سمندر میں پھینک دی۔ مچھلی نے اسے نگل لیا۔ یہ لمحہ آزمائش کا عروج تھا، مگر اللہ کا وعدہ سچ تھا۔ مچھلی اور مزدور نبی حضرت، جو اب ایک عام مچھیرے کے ہاں مزدوری کر رہے تھے، ایک مچھلی پکڑتے ہیں۔ جب مچھلی کاٹ کر دیکھا، اندر وہی انگوٹھی تھی جس کے بغیر تخت اور جنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ لمحہ ناقابل بیان تھا۔ آسمان کے تمام فرشتے گواہ تھے، زمین کی ہر شے خاموشی سے اللہ کی طاقت دیکھ رہی تھی۔ تخت کی واپسی، انگوٹھی واپس پا کر سب کچھ دوبارہ بدل گیا۔ ہوا دوبارہ تابع ہو گئی، جنات فرمانبردار ہو گئے، تخت اور سلطنت اپنے مقام پر واپس آئے۔ شیطان کی حقیقت سامنے آ گئی، اسے پکڑ لیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ عدل اور انصاف دوبارہ قائم ہوا۔ سب سے بڑا سبق، صبر کی برکت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، آزمائش عارضی ہے مگر صبر دائمی ہے۔ طاقت کی علامت عارضی ہو سکتی ہے، مگر ایمان ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ناکام نہیں کرتا۔ دنیا کی دولت اور تخت کچھ بھی ہوں، اصل عظمت ایمان میں ہے۔ حضرت اور سلطنت کھو کر بھی ایمان نہ کھویا، اور اللہ کی مدد سے سب کچھ واپس حاصل کیا۔ آخری نے فرمایا، حضرت اے لوگو، سلطنت اور طاقت اللہ کی عطا ہے، یہ عارضی ہیں، امتحان ہیں۔ اصل عزت اور کامیابی ایمان اور تقوی میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، صبر کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ نصیحت آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عظمت کے بغیر ایمان بھی کامیابی ہے، اور صبر کے بغیر طاقت کبھی قائم نہیں رہتی۔ اختتامی منظر، رات کا وقت تھا، محل میں سکون چھایا ہوا تھا۔ حضرت سیدھ بیٹھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون، زبان پر شکر۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، یہ سب تیرے فضل اور کرم کی بدولت ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تجھ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور اسی لمحے تاریخ نے ایک سبق سیکھا، طاقت، تخت اور دولت سب عارضی ہیں، لیکن ایمان اور صبر ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔